आज हम हैं IIM इंदौर में। नाम बता दो। माय नेम इज़ स्तुति। मैं PGP HRM कोर्स से हूँ, फर्स्ट ईयर बैच से। मेरा अभी टर्म 1 ख़त्म हुआ है, अभी टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? I'm Natasha. I'm doing my final year MBA. ओके, आप? I'm Ishan. I'm in my third year of IPM program. ओके, मेरा नाम क्रिश है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप क्रिश? अभी मैं IPM प्रोग्राम में पढ़ रहा हूँ, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है IIM इंदौर का। मैं उसी में पढ़ रहा हूँ और मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी। My name is Jean-Baptiste and I'm a foreign exchange student at IPM program, एंड वेयर फ्रॉम? France. My name is Lola and I am also an exchange student from the IPM program and I am also from France. Hi everyone, welcome to our channel College Review Unfiltered. तो ये वीडियो होने वाली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के प्लेसमेंट स्टैटिक्स के ऊपर, क्या कह सकते हैं, प्लेसमेंट के ऊपर। अब ये वीडियो हमने कोशिश करी है कि हम रैंडम ना बनाएं, वेरेज हम उन स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश करें कि जो पूरा प्रोसेस है प्लेसमेंट का वो किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है। अब ये प्रोसेस मैंने पहले क्यों कहा, हालांकि मैक्सिमम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं कि प्लेसमेंट क्या है, मतलब अल्टीमेट आउटकम क्या है। तो अल्टीमेट आउटकम जो आता है वो डिसाइड करेगा जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं विद इन दैट 2 years ऑफ जर्नी, या वो जो पूरे MBA की जर्नी होती है उस पूरे MBA की जर्नी में जो भी कुछ इनपुट्स दिए जा रहे हैं, मीन्स किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द इंटरव्यूज़, समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप किस तरीके से उनको प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, पूरा प्रोसेस क्या फॉलो किया जा रहा है, तब अल्टीमेटली आउटकम जो होता है वो डिसाइड किया जाता है कि आउटकम क्या आएगा या कैसा आएगा। ठीक है, और एज आई सेड कि हमने कुछ रैंडम यहाँ पे नहीं बोला है, हमने कोशिश ये करी है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जाने कि किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। प्लेसमेंट सेल हमारे में से ही बना होता है। दे आर अ स्टूडेंट रन बॉडी विद अ प्लेसमेंट चेयर एंड एन ऑफिस, बट दे आर मेजरली स्टूडेंट रन। आई थिंक फॉर IPM also this is the case. IPM, PGP, HRM, anybody, it's the students who are getting you the placements. They are the ones who are getting you placed, getting exposure to the the companies who are coming to campus, all of those. हमारे अभी SIPs ही चल रहे हैं. We are not really allowed to talk about them too much, but just to put it out there, confidence तो है कि it will be nice. सब अच्छा होगा. We have had history. We have seen an amazing history of people being placed from here, or nothing's going to change. It's just still going to continue, if not get better. आप कुछ ऐड करोगे इसमें प्लेसमेंट्स में? So placements, apart from what Placecom does, it does a great job of getting all companies. So we also have startups. If someone's interested in startups, we have like the big four. We have finance, strategy. So we have all domains that come to college. But apart from that, there's also a lot of help from other committees and clubs in preparations for the placement. So for example, we have a club for every domain. Yeah. So we have like a marketing club, a strategy club, an operations club, and we have a consulting club. We also have a finance club. So all of these clubs, when for example their summer placement processes are happening, so they come out with a lot of material, a lot of handbooks that help us cover the basics that we need for our interviews and like maybe the tests that happen. And then we also have like a placement preparation committee, which helps us specifically prepare for the interviews, group discussions, and we have vendors from outside that come and conduct mock interviews and mock PIs. So I personally think there's like a lot of help from outside and from within the students who put in a lot of effort to train everyone, like the whole of the batch, to be ready for placements and interviews. हाँ, आप कुछ I ऐड mean, करेंगे? being from IPM, we've already gone through one placement process as the social internships, which happens in second year of our program. Again, in that, the placement committee is made of the students itself, and the placement was very similar. We get a lot of help. Our resumes are constantly being iterated, constantly being improved. So it's not like you do your best. अगर तुम्हें आता है तुम अच्छा बना लोगे, नहीं आता तुम गिर जाओगे. Entire community, entire bodies are there just to ensure that everyone has a good resume, everyone is corporate ready. Every resume the corporate people go through, they can say like, this is impressive, I want these kids. So in a sense, it's not going to be a competitive environment कि if you already know you'll succeed. Everyone is here to succeed, they'll be taught to succeed and they will succeed. It's a cooperative environment, right? Very cooperative environment. ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे इसमें प्लेसमेंट में? और कुछ नहीं, मतलब जो सीनियर्स वगैरह होते हैं जिनसे हम आइट्रेशन करवाते हैं, तो वो रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपके पास अब 3 महीने बचा, आपके पास 4 महीने बचा आपकी इंटर्नशिप के पहले, आपके जॉब के पहले, तो आप इन चीज़ों को, ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह होते हैं जो थोड़ा सा उभर के आते हैं आपके रेज्यूमे में से, तो वो बता देते हैं कि ये कर लो, अभी टाइम है। तो इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हम काफ़ी अच्छा रेज्यूमे बना लेते हैं। अच्छा,
सो ओवरऑल प्रोसेस आपके समझ में काफ़ी अच्छे से आ गया होगा कि क्या क्या इनिशिएट कैंपस ले रहा है। हालांकि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो आपको ये बता पाए कि एग्जैक्ट प्लेसमेंट कितने का था। तो इस डेटा को हम लोगों ने कोशिश ये करी कि आपके सामने में रखें और उसके लिए हमने NRF का डेटा कंसिडर किया है एंड 3 साल का डेटा हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। बात करें 2020 एंड 2021 की, तो ओवरऑल 604 स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ विच 604 स्टूडेंट्स को जॉब मिली, मीन्स 100% प्लेसमेंट रहा था। एंड जो मीडियन सैलरी की मैं बात करूं तो वो रहा था 22,60,000 रुपये का। 2021-22 में स्लाइटली इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। मीडियन पैकेज में जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे वो अगेन 565 थे और 565 की जॉब लगी थी, मीन्स अगेन 100% प्लेसमेंट रहा था। एज आई सेड स्लाइटली इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखा गया है। तो जो प्लेसमेंट रहा है वो 24,09,000 रुपीज़ का मीडियन प्लेसमेंट रहा है। अगेन नेक्स्ट ईयर ये और बेहतर इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2022-23 की, तो 613 स्टूडेंट्स ने यहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी, आउट ऑफ विच 606 बच्चों को जॉब मिली। रेस्ट ऑफ 7 स्टूडेंट्स अपनी हाई स्टडीज़ के लिए गए। अगेन यहाँ पे 100% प्लेसमेंट्स रहा था। एज आई सेड कि जो मीडियन पैकेज में स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को इस ईयर भी मिला, जो कि रहा 24,70,000 रुपीज़। सो एज आई सेड कि हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, और लॉट ऑफ टाइम ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो किसी भी कॉलेज में या किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है, आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक छोटा पॉडकास्ट या एक छोटी वीडियो के फॉर्म में हम उसको कवर करें, और ये वीडियोस हेल्प करेंगे जो अपकमिंग जनरेशन है, जो मे बी इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में एडमिशन लेंगे, बिकॉज उनके लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टूडेंट्स यूट्यूब में और भी प्लेटफॉर्म्स में जाके इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं या डेटा चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ना ही वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन होती है, ना ही वो डेटा ऑथेंटिक होता है या वैलिडेटेड होता है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि उन स्टूडेंट को वो ऑथेंटिक एंड वैलिडेटेड डेटा मिले, जिससे वो अपने करियर का डिसीजन सही ले सके, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अपकमिंग सेशन में एडमिशन लेने का प्लान करें, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ऐसे ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाले वीडियोस जो हैं, जो स्टूडेंट इंटरेक्शन वीडियोस हैं, वो मिलती रहें।